All right, so the important thing today is to talk a little bit about the demonstration that I have uploaded to your LMS. And hey, how are you doing? I'm fine. Completely healed now? Yeah. Nice to know that. Okay, so I have uploaded into your resources section this file. Where is the file? This file 2D Poisson mg.zip. So जो आपको प्रोजेक्ट्स में बनाने के लिए दूंगा ये बेसिकली एक स्केलेटन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरह से बनाइए, आपको जैसे जी चाहे जिस तरह समझ में आए वैसे बनाएं। So but this is what I am giving you as a skeleton, a working skeleton. I'll demonstrate the multi-grid method, the two-grid method, Jacobi, Gauss-Seidel, all of the concepts today, and it's working. इसमें आप रद्दो बदल करके ऑपरेटर की मैट्रिक्स जो 2D पॉइसन की बन रही है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कन्वेक्शन डिफ्यूजन ऑपरेटर है, आप उसकी बना रहे हैं, किसी और के पास हेमहोल्ट्ज ऑपरेटर है, वो उसकी बना रहा है, किसी और के पास यही पॉइसन है लेकिन ये वर्टेक्स सेंटर्ड प्रोजेक्ट के बजाय वो उसे सेल सेंटर्ड पे बना रहे हैं। तो ये सारे काम तब्दीलियां करके आप इससे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ प्राइमरी पर्पस ऑफ अपलोडिंग प्रोजेक्ट दैट आई मेड for two-dimensional Poisson, and I'll show it to you. AC on there, और इसको जो है वो 23 पे कर दीजिए। और पंखा जो है इसका बिल्कुल स्लो स्पीड पे रखिएगा। हाँ, क्या चीज वो बंद हो गया वाला। ओके, सो इसका जो है फैन वो बिल्कुल स्लो है, तो मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा तकलीफ होगी, और अगर हो तो बता दीजिएगा, रिमोट बाहर रखें। अच्छा, तो you want this to be shut down? Okay. So I have this project uncompressed at my end. I'll demonstrate things to you. But as soon as we are through with it, you need to download it at your end. Open up MATLAB, open this project in MATLAB on a machine that has MATLAB, workable copy of MATLAB, and check out how we solve differential equations numerically, okay? Now let me go without further ado directly to this project. So this has many files, and let me show you what the project is. If I do, I want to see the directory. I have created many M files. All of these are function M files. So the relationship between a function M file and its input and its output must be clear to you by now. I requested the same in the last class. There is a general format in which MATLAB functions are written. You have the keyword function, then a list of output in square brackets, comma separated outputs is equal to the name of the function, and then within parenthesis, a comma separated list of input arguments. So you have to check out the 6th and the 7th chapter in minutest detail in order to understand this. If you don't understand anything there, my door is always open and you can come in and discuss. Okay, analytic.m, the first function. Let me show you what it does. Okay, so this is a small function where I have chosen a test function, a particular test function, and the particular test function that I've chosen is a simple one,
C1, C2 and C3 are constants and would not be supplied in the input list. So C1, C2 and C3 have been declared as global. ग्लोबल का क्या मतलब है? यहाँ पे ग्लोबल का मतलब है कि जो प्रोग्राम एनवायरनमेंट, चाहे वो मैटलैब का वर्कस्पेस हो या कोई और फंक्शन हो, जो एनालिटिक को कॉल करेगा वो भी C1, C2, C3 को ग्लोबल डिक्लेयर करेगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि C1, C2, C3 में वैल्यूज पड़ी हुई हों पहले से. So this is a very tricky business here. It's a sufficiently complicated project. I want to go slow with it and I want all of you to pay attention. ठीक है? Okay, तो अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक grid है. So let me draw it to you as well. So this is what I have. So just imagine that I have a grid here. This is a grid and I have, for now, just imagine that I have, say, a 4 cell by 4 cell grid like this. So, अगर मुझे एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी गिवन फंक्शन, जो फंक्शन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो मैंने एनालिटिक फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, एनालिटिक के मैटलैब फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, वो ये वाला फंक्शन है. uxy is equal to sine of some constant c1 pi x plus sine of c1 pi y divided by 1 plus c1 plus c2 or maybe c3. Just one moment. c3 plus x plus y, sorry. c3 plus x plus y. So just imagine कीजिए कि आप किसी भी सिनेरियो में c1, c2, c3 को कांस्टेंट वैल्यूज दे दें और इनमें से हर ग्रिड पॉइंट के एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स आपने एक लिस्ट में कलेक्ट कर लिए, यानी कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे में. आपने ये कहा कि जो x है मेरे पास, फॉर एग्जांपल, अब इस डिस्क्रिटाइजेशन के लिए जिसमें यहाँ पे सिर्फ 4 सेल्स हैं, मेरे पास इसका x कोऑर्डिनेट होगा 1/4, इसका होगा 1/2 और इसका होगा 3/4 और इन तमाम पॉइंट्स के वाइस वर्सा यही x कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट? सो मेक श्योर वी गेटिंग इट राइट. सो आपके पास यहाँ पर है 0.25, 0.5, 0.75 इन तीन के. उसके बाद lexicographically these three would follow and the lexicographically these three would also follow. So 0.25, 0.5, 0.75 and then finally 0.25, 0.5 and 0.75. ये मेरे पास लिस्ट आ गई x की. इसी तरह मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए y की. अब जो पहले तीनों पॉइंट्स हैं उसके लिए मेरे पास 0.25, 0.25, 0.25 y कोऑर्डिनेट है. फिर ये जो अगले तीन पॉइंट्स हैं इसके लिए मेरे पास 0.5, 0.5, 0.5 कोऑर्डिनेट है और फिर अगले वाले के लिए मेरे पास 0.75, 0.75 और 0.75 कोऑर्डिनेट्स हैं. तो ये मेरे पास जो दो सिंगल डायमेंशनल एरे हैं, ये मैं कैसे बनाऊंगा थोड़ी देर बाद की बात है. फिलहाल ये है कि पास ये चीजें मेरे पास हैं. तो जो फंक्शन एनालिटिक को कॉल करेगा, यानी कि इस फंक्शन को जो फंक्शन कॉल करेगा वो ऐसा क्या चीजें सप्लाई करेगा, x और y की लिस्ट सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द ग्रिड साइज दैट हैज बीन पास्ड. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलिंग फंक्शन की. और डिक्लेयर करेगा कुछ ऐसे कांस्टेंट्स जो कि फंक्शन टू फंक्शन तब्दील नहीं हो रहे. तो अगर टेस्ट फंक्शन के कांस्टेंट्स आपको कहीं किसी वजह से चाहिए, कोई ज़रूरत है,
तो C1 C2 C3 में वैल्यूज लोडेड होनी चाहिए। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक कॉलम वेक्टर u, ये ईट करेगा, खाएगा, इसको फीड किए जाएंगे दो कॉलम वेक्टर्स, एक में एब्सेसर्स की लिस्ट है ग्रिड पॉइंट्स की, एक में ऑर्डिनेट्स की लिस्ट है, एंड देन इट विल कैलकुलेट द न्यूमरेटर and calculate the denominator both as column vectors। ठीक है, पूरे x के कॉलम वेक्टर्स y के कॉलम वेक्टर्स यूज किए तो न्यूमरेटर पूरा एक कॉलम वेक्टर बन गया। अब न्यूमरेटर के कॉलम वेक्टर के हर कंपोनेंट को इस चीज से डिवाइड करना है, ये खुद एक कॉलम वेक्टर है सेम लेंथ का, तो इसके लिए डॉट डिवीजन यूज होगी, आपने इसे डिवाइड किया और अब आपके पास टेस्ट फंक्शन की वैल्यू आ गई कहाँ पे, हर 9 ग्रिड पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है इसका? तो अब हम ये यूज कहाँ करेंगे ये हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन हमने अभी क्या बताया कि हमने जानबूझ के एक सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन u प्रिस्क्राइब किया ग्रिड के ऊपर, खुद हमने प्रिस्क्राइब किया है, हम खुद ही उसको उसके मौजूद हैं, हमने इजाद करके उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, तो अब हम उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रू वैल्यूज कंटिन्यूम सोल्यूशन की, और कंप्यूटेड सोल्यूशन के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ analytic.m। Yes, so this is C3, this is C2. By the way, it doesn't really matter, so you just need to be consistent. We can take any like this we can make our own function. Of course, you can prescribe, for example, a polynomial function. Polynomial function prescribe कर सकते हैं polynomial in both x and y, and I'd suggest to take it symmetric for the time being. Polynomial function ले लें, exponential function ले लें, कोई और transcendental function ले लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड जब मैंने खुद प्रिस्क्राइब किया है फंक्शन, तो मुझे जो राइट हैंड साइड है वो भी कैलकुलेट कराना है हर ग्रिड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड के लिए मेरे पास एक क्लोज फॉर्म फॉर्मूला होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए गिवन। कहाँ से आएगा? इसका second partial with respect to x added to its second partial with respect to y, and then a negative sign prepended before them. Okay, so I'll open up the source function file. This is the source function file. Okay, what I have done here is something laborious. What I'd rather suggest you to do is just calculate the analytical derivative with respect to x twice by calling the diff function over u twice, and then calling the diff function with respect to diff function over u with respect to x 2 times, and then diff function with respect to u over y 2 times, adding them together and prepending with a negative sign. But मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, ये काम अच्छा खासा तकलीफ दे जो 2-3 लाइन में, क्योंकि फंक्शन सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड है अलजेब्राइकली। सो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं, द डेरिवेटिव निकालने का काम नीड सम पेपर एंड पेन एफर्ट, एंड experience has taught that there is a lot of room for mistake, getting some sign wrong, और फिर उसके बाद जो है you don't exactly get the function correctly when you solve the equation. Nevertheless, this is a correctly implemented right hand side। ये वो सेम फंक्शन है, साइन फंक्शन, जो मैंने अभी लिख करके आपको यहाँ ब्लैक में दिखाया है। जब मैं इसके ऊपर इस फंक्शन को u रखते हुए ये चीज कैलकुलेट करता हूं, तो जो चीज मेरे पास नतीजतन आ रही है उसका नाम मैंने रखा है fxy, या मैटलैब के जार्गन में उसका नाम रखा है source function डॉट m। अगेन इसको C1 C2 C3 की जरूरत पड़ेगी। डिनोमिनेटर इसने कह दिया C3 प्लस x प्लस y है, x और y वही एब्सिसस और ऑर्डिनेट्स की लिस्ट है, तो ये इसको कैलकुलेट करके आपको राइट हैंड साइड बता देगा। ठीक है, द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू अवॉइड इज डूइंग द कैलकुलेशन, पार्शियल डेरिवेटिव हाथ से 2 दफा विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, विद रिस्पेक्ट टू y निकालना। आई बिलीव यू ऑल आर मच मोर efficient at doing that, want to cross check it, you may cross check it. But what is it returning? It is returning source values at every grid point। ठीक है, every interior grid point जब ये ultimately कॉल किया जाएगा।
अभी मैं आपको जितने मैंने टूल्स बनाए हैं जिनको, या जितने कंपोनेंट्स बनाए हैं कह लीजिए इसी प्रोजेक्ट के, वो मैं सारे अलग अलग से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि क्या कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। थोड़ा सा इंडिकेट करूंगा ये भी कि इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। ठीक है, अब जब मैंने डिस्क्रिटाइज की इक्वेशन, तो मुझे मैट्रिक्स बनाने वाला एक कोड चाहिए, वो अभी मैंने नहीं डिस्कस किया है, करता हूँ। साथ में राइट हैंड साइड कंस्ट्रक्ट करने वाले भी एटलीस्ट 2 कोड्स चाहिए। एक क्या काम करेगा, सोर्स फंक्शंस कैलकुलेट कराएगा, सोर्स फंक्शन की वैल्यूज, और दूसरा क्या काम करेगा, डायरेक्टली बाउंड्री कंडीशंस सही जगहों पर ऐड कराएगा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ let's move on. And there are two functions, boundary.m and boundary contribution.m. In a nutshell, what these two functions are doing, they're calculating directly boundary values at the grid points and then adding them on the right hand side vector in the appropriate positions. Okay, has anyone tried that out yet yourself, calculating the right hand side? Yeah, how did you do it? So like for example, when we had an issue, like Yes. जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया था, राइट हैंड साइड अपनी मर्जी का took the value of the actual solution. Then I started with the function of x चला गया तो नीचे जा रहा है, प्लस fy चला गया b के राइट हैंड साइड पे, उसकी वैल्यूज पुट वगैरह की थी मैंने, तो वो आ गई थी वो. So your right hand side constant is What the constant. all right. Okay. So if you have a test function prescribed, then you have a specific f, not just any f. You forego the leeway of using any f if you're prescribing a test function. So what I am saying is, if you have a test function, you compute the derivative twice, then you have a formula, you insert the formula here and you get the source value. Now, the source values themselves are not enough, and you need boundary values to be incorporated along with multiplication by this specific stencil element. Okay, थोड़ा सा इसको देख लें, इसके अंदर तो आपको ज्यादा अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा what am I talking about here. Now this is an overly simplistic grid, just has 4 points here and 4 points there. So if I wish to calculate all of the south boundary functions, then I must add something. I must calculate the values of this function u, because it's a Dirichlet problem. इन coordinates के ऊपर मैं u calculate करूंगा, और कहाँ मुझे ऐड कराने होंगे, पहले मैं उसको stencil element से मल्टीप्लाई कराऊंगा और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इन पोजिशंस पे ऐड कराऊंगा. मेरा ख्याल है कि ये मैंने आपको एक और क्लास में पहले तफसीली बता भी दिया था कि मेरे पास एक बाउंड्री में साउथ साइड है, ये वाली ईस्ट साइड है, ये वाली नॉर्थ साइड है और ये वाली वेस्ट साइड है. इन सब पे आपको क्या काम करना है, एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं. 3 यहाँ के, फॉर एग्जांपल फॉर दिस ग्रिड, 3 इधर के, 3 इधर के, 3 इधर के. उसके बाद ये फंक्शन उन पे कैलकुलेट कराना है, स्टेंसिल एलिमेंट मल्टीप्लाई कराना है और सोर्स में ऐड कर देना है. दिस इज व्हाट needs to be done, and this is precisely what these two functions are doing together. ओके, सो बाउंड्री का फंक्शन क्या काम कर रहा है, बाउंड्री का फंक्शन ये काम कर रहा है कि कह रहा है कि ईस्ट साइड की बाउंड्री और वेस्ट साइड की बाउंड्री का स्टेंसिल एलिमेंट सेम है. वो स्टेंसिल एलिमेंट है 1/hx². इसी तरह से साउथ साइड की बाउंड्री और नॉर्थ साइड की बाउंड्री दोनों y एक्सिस को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इनका भी स्टेंसिल एलिमेंट सेम है, वो है 1/hy². hx और hy हमें पता है कि क्या है. hx और hy क्या है, जितने हमने सेल्स अलोंग x एक्सिस लिए हैं 1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स, और इसी तरह से जो लेंथ है हमारे डोमेन की अलोंग y, ये न्यूमरेटर में लिखी हुई है, दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स अलोंग y.
ये जो फंक्शंस हैं बाउंड्री कंट्रीब्यूशन, ये कैलकुलेट होते हैं 4 अदद बाउंड्री कंट्रीब्यूशन, यानी इसके अंदर लिस्ट जाती है डोमेन की और ये 4 बाउंड्रीज पे कैलकुलेट करके बाउंड्री कंट्रीब्यूशन यानी वैल्यूज ऑफ यू दे देता है। ठीक है, लेट मी शो दैट टू यू। ओके, सो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि बाउंड्री कहाँ से शुरू हो रही है डोमेन की, ए क्या है, राइट एंड चाहिए इसको, बी क्या है, फिर एन चाहिए इसे कि ए से बी तक एन अदद सेल्स में तोड़ा गया है। और ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन एक बहुत ही मामूली सी चीज है। ये कह रहा है कि जब बाउंड्री कंट्रीब्यूशन कॉल किया गया, मुझे जब कॉल किया गया तो मुझे कौन सी साइड बनाने को कहा गया। वन का मतलब है कि वन केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, आपने स्विच केस में डाल दिया। एक आपको साउथ साइड देगा, एक आपको वेस्ट साइड, ईस्ट साइड देगा, एक नॉर्थ देगा, एक वेस्ट देगा, एंड सो ऑन। ओके, जब आपने ये बना लिया तो आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया एक फिल्टर एलिमेंट से। फिल्टर एलिमेंट क्या है, इमेजिन कीजिए कि आपने वैल्यूज कैलकुलेट की तमाम ग्रिड के ऊपर इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, और उसके बाद उनको पंच आउट कर दिया उन वैल्यूज को, यानी थ्रो कर दिया by having appropriate places पे ones and other places पे zeros. Okay, so यहाँ पे जो बाउंड्री वाला फंक्शन है, if I were to see this कि वैल्यूज कैसी हैं, कोई मुझे इसका सिर्फ जीरो स्ट्रक्चर बता सकता है, यानी नॉन जीरो स्ट्रक्चर BS का क्या होना चाहिए? And I'm pretty sure that we discussed it in class. इसके इस केस में जो हमारे पास 4 सेल बाय 4 सेल की ग्रिड है, BS would be a column vector consisting of 9 elements, और उसमें जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे पॉसिबली, और बाकी इसेंशियली 6 के 6 जीरो होंगे। ठीक है, ईस्ट साइड, अब ईस्ट साइड कैसे जा रही है, ईस्ट साइड ऐसे जा रही है कि ये वाली साइड है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, यहाँ तो हमें नहीं कैलकुलेट करनी बाउंड्री। बाउंड्री जो यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है वो इनकी स्टेंसिल का हिस्सा बनेगी, प्लस की शक्ल की स्टेंसिल है ना आपके पास, बीच में 4 है, -1 और -1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को जरूरत पड़ेगी ईस्ट साइड की बाउंड्री इनकॉर्पोरेट करने की। तो आपने 0 0 एंड अ नॉन जीरो, फिर 0 0 एंड अ नॉन जीरो, अगेन 0 0 एंड अ नॉन जीरो, ये नॉन स्पार्सिटी स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। ये स्पार्सिटी स्ट्रक्चर होगा इस वाले का। नॉर्थ साइड का क्या होगा, 6 के से 6 जीरोस, और उसके बाद नीचे के जो 3 अदद हैं वो नॉन जीरोस। ऊपर वाले कॉलम वेक्टर है ना, बीएन कॉलम वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहले 3 हैं वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट्स को जो कि साउथ साइड पे हैं। ठीक है, ये जो पहले 3 मैं लिखूंगा, इनको लेआउट करूंगा, फिर इनको लेआउट करूंगा, फिर इनको लेआउट करूंगा, और नॉर्थ साइड की बाउंड्री सिर्फ इनके साथ इनकॉर्पोरेट होगी, आखिरी 3 के साथ। शुरू के 6 हैं, टॉप से लेकर 6 तक वो जीरो होंगे इस केस में। वेस्ट साइड की बाउंड्री में क्या होगा, अ नॉन जीरो देन 2 zeros, फिर अ नॉन जीरो देन 2 zeros, फिर एक और नॉन जीरो और देन 2 zeros अगेन। ओके, so what I can also do is run this and show you to alleviate any problems. Right, so let me demonstrate this to you. Grid domain, and I need to define C1 C2 as global before I run this. C1 is equal to 2 into pi, C2 is equal to 2 into pi, C3 is equal to 2 into pi. By the way, you can take any constants you like. All right, so now I have boundary grid is 4 4,
and my domain is 0101. ओके सो ये इसने बाउंड्री कैलकुलेट करके मुझे आंसर दिया है। कोई ये बता सकता है कि जो सेंटर का पॉइंट है इस पे वैल्यू 0 क्यों है? चारों तरफ इंटीरियर पॉइंट्स है, उस सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ये इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है क्योंकि ये किसी बाउंड्री पॉइंट का नेबर नहीं है। तो ये ऐसी नामाकूल छोटी सी ग्रिड है जिसमें हर पॉइंट सिवाय एक के किसी न किसी बाउंड्री पॉइंट का नेबर है। इसे एडजेसेंट टू द बाउंड्री कहते हैं। तो सिर्फ ये एक पॉइंट है जो किसी बाउंड्री के एडजेसेंट नहीं है, राइट? सो what I wish to show you is BS south side, BE east side, BN north side, and B west side, and this is what you should see. ठीक है, ये पूरा साउथ साइड का बाउंड्री कंट्रीब्यूशन है, ये ईस्ट साइड का एज स्पेक्यूलेटेड, ये नॉर्थ साइड का और ये वेस्ट साइड का। ठीक है, क्लियर है ये बिल्कुल। इनके साथ आपने बाद में क्या किया, नॉर्थ और साउथ, ये साउथ वाला और ये नॉर्थ वाले के साथ आपने 1/hy² मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के साथ आपने 1/hx² मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड करके सिंगल कॉलम वेक्टर बनाया और कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर दिया कि ये ले लें आप, ये बाउंड्री का कंट्रीब्यूशन है। सोर्स और इस आगे क्या चल रहा है, यानी पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे चल रहा है कि सोर्स वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं पूरी ग्रिड पे। अब ये बाउंड्री कंट्रीब्यूशन ऐड होगी, राइट हैंड साइड एक्यूरेटली तैयार हो जाएगी। ठीक है, right now I will discuss Laplacian 2D. Laplacian 2D will take a few inputs and would return the matrix to you, matrix of the problem. Okay, so again this just takes into account the grid and the domain and returns the matrix A to you, and it uses SP diags to make a one-dimensional matrix, and then it uses the identity matrix of the correct order in order to span it into a 2D grid. अच्छा, अगर हमें ये बात नहीं पता होती फॉर एग्जांपल, और हम ये चाह रहे होते कन्वेंशनल CS वे में कि हम एक 2D एरे लें और उस 2D एरे के एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स से सेट कर दें या उनमें वो एलिमेंट्स सेव कर दें, स्टोर कर दें जो कि मैट्रिक्स का हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं? पहला तरीका क्या होता? नाइव, बिल्कुल नाइव तरीका। अगर हमें लूप बेस्ड प्लेटफॉर्म होता हमारे पास कोई, जैसे पाइथन है, जावा है, सी है, C# है, हम एक नेस्टेड लूप लिखते हैं। सबसे पहले एक एरे 2D एरे A डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक नेस्टेड लूप लिखते हैं और उस एरे में फॉर एग्जांपल पहली रो का हमें पता होता है कि पहला एलिमेंट, फिर कौन सा एलिमेंट, फिर कौन सा एलिमेंट लोड करना है विद स्पेसिफिक नॉन जीरोस, वो हम लोड करते हैं, फिर अगली रो में चले आते हैं, फिर अगली रो में चले आते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, ये कोड एग्जैक्टली वही चीज सेट करके दे रहा है जो काम आप अदरवाइज इस तरह से करते जो मैंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब आपको 2-3 चीजें और भी मैंने बताई थी, वो ये है कि जब मैट्रिसेस बहुत बड़ी होती हैं तो उनकी स्टोरेज एक इशू हो जाती है। सिर्फ स्टोरेज ही नहीं बल्कि उन पे जो ऑपरेशंस हमें करने हैं वो भी इरेलेवेंट हो जाते हैं अगर हम उनके 0 एलिमेंट्स पे भी वो ऑपरेशन करने लगे। तो 0 ऑपरेशंस, 0 एलिमेंट्स हमें स्टोर नहीं करने होते। यू डोंट वांट टू हैव दोस 0 एलिमेंट्स स्टोर्ड ऑन द डिस्क। सो व्हाट डू? वी यूज स्पार्स स्ट्रक्चर्स, और आपके पास एटलीस्ट 3 बहुत ही कॉमन स्पार्स स्ट्रक्चर्स हैं। एक है कंप्रेस्ड रो स्पार्स, एक है कंप्रेस्ड कॉलम स्पार्स और एक है डायगोनल स्पार्स। अब ये जो डायगोनल IJ वाला फॉर्मेट है, मैटलैब इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में सिर्फ स्पिट आउट करता है। आप जब आप मांगते हैं कोई मैट्रिक्स तो आपको लिस्ट दे देता है कि मैट्रिक्स के अंदर इस एड्रेस के ऊपर ये नॉन जीरोस पड़े हुए हैं।
यानी उनका आई जे दे देता है एज अ लिस्ट, लेकिन इंटरनली वो कंप्रेस्ड कॉलम स्पार्स फॉर्मेट में उसको सेव करता है मैटलैब, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट लैब 2D. So if I say I have A as lab 2D and I need the grid and the domain. Now if I wish to look at A is sparse, ठीक है। मैं चेक कैसे कर सकता हूँ is sparse A? Answer is 1, logical 1. Yes, indeed, it's a sparse matrix. It's not a normal dense 2D array. Compressed column sparse format में internally represented. If I wish to look at it, and if I just write A and write down this, ये IJ format में सारी information spit out कर देगा, which is not very useful if you see it just like that. तो इसको सिर्फ देखने की गरज से आप फुल में रैप कर सकते हैं। अगर आप कहें फुल A, तो आपको ये मैट्रिक्स नजर आ जाएगी कि ये मैट्रिक्स असल में तैयार हुई है, which is your matrix for the Laplacian. कॉन्टिन्यूम लैप्लाशियन को जब आपने सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंसेस से जो कि ऑर्डर एक्स स्क्वायर के हैं डिस्क्रिटाइज किया, दिस इज द मैट्रिक्स यू गेट। राइट, सो एज फार एज द प्रोजेक्ट इज कंसर्न, डिस्क्रिटाइजेशन का प्रोजेक्ट, वी आर गुड टू गो, क्योंकि हमने डिस्क्रिटाइज कर लिए, मैट्रिक्स बना ली, राइट हैंड साइड में सोर्स और बाउंड्री दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, और अब हम कम से कम एक काम जरूर कर सकते हैं। वो क्या काम है? हम मैट्रिक्स को एग्जैक्टली इन्वर्ट करके राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेशन हासिल कर सकते हैं ऑफ द कंटिन्यूम सोल्यूशन जो हमने प्रिस्क्राइब किया था यहाँ पे। ये जो कंटिन्यूम सोल्यूशन है ये वाला, इसकी एक ग्रिड अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूं मैं बार बार, सैंपल्ड नहीं कह रहा हूं। सैंपल्ड का मतलब होगा कि आपने इस फंक्शन को इस्तेमाल किया, इसमें x और y की जगहों पे इसके एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स की लिस्ट भेज दी और कैलकुलेट करा दिया। एनालिटिक यही काम कर रहा है, but we are not doing that. What we are doing is an approximation of this function at the grid points. Okay, so now just let's see. Okay, so what do you have, what do you don't want to see? इसमें बहुत सारा क्लटर जरूर है, but everything is there for a purpose. And I want to avoid all the clutter while I am discussing what I am about to discuss. So tolerance क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम इटरेशंस क्यों लिखी हुई हैं 0.5 मिलियन, बाद में देखते हैं। इंडेक्स फाइन इंडेक्स कोर्स के स्टडिया का नाम है, वी नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, वील सी। व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज ग्रिड। ग्रिड कितनी बड़ी हम ले रहे हैं? अलोंग एक्स 8 सेल्स, अलोंग वाई 8 सेल्स। डोमेन अलोंग x 0 से शुरू होता है 1 पे खत्म हो रहा है, अलोंग y 0 से शुरू हो रहा है 1 पे खत्म हो रहा है। और चूंकि हमें बाउंड्री वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमने C1, C2 और C3 जिनको हमने यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है, अमंगस्ट अदर ग्लोबल वेरिएबल्स, दीज 3 आर आल्सो डिक्लेयर्ड ग्लोबल, तो इनकी हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी, ठीक है। अच्छा, अब smoother.id, smoother.omega, smoother.pre, smoother.post, we're not concerned about it in this discussion right now. Restrict is equal to 2, prolong is equal to 2, CG is equal to 1, we're not concerned about it. Just let it pass. Number of levels, empty matrix, plot cycle 0, we don't want to talk about it at this time. Okay, so what are we going to talk now is about function which is called build system, which does what exactly? Let me tell you. So build system जो है वो ये काम करेगा कि जितने भी मल्टीग्रिड लेवल्स थे, वो कि अभी हम मल्टीग्रिड की पर से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी मल्टीग्रिड लेवल थे उन सब के लिए वो प्रॉब्लम को डिस्क्रिटाइज करके मैट्रिक्स बना लेगा, और साथ में 2 और मैट्रिसेस के पेयर्स बनाएगा हर इंटीरियर लेवल के ऊपर, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन या एवरेजिंग मैट्रिक्स कहते हैं और प्रोलोंगेशन या इंटरपोलेशन मैट्रिक्स कहते हैं। So this is the job of build sys. Don't worry about it right now. The only thing that we
want to worry about at this time is that we now have a matrix once this is run. अभी तो मैंने matrix हाथ से बनाई थी, अब ये जो प्रोग्राम है buildsys ये खुद matrix बना रहा है, ठीक है, उसी lab2d को कॉल करके. I'll show you buildsys. This is buildsys और यहाँ पे this is making for every system. System is an array. सिस्टम एक एरे है जो कि हर लेवल पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, हर मल्टीग्रेड लेवल पे. तो अभी फॉर नाउ वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द फाइनेस्ट लेवल. अभी तो हम मल्टीग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अगर हमने 8 सेल बाय 8 सेल की ग्रिड प्रिस्क्राइब की थी तो हम उसी के ऊपर प्रॉब्लम डिस्क्रिटाइज करने में इंटरेस्टेड हैं. सो ये यहाँ पे बहरहाल इसने लाप्लासियन 2D कॉल किया और मैट्रिक्स को इसके अंदर सेट कर दिया. फिर हमने सोर्स फंक्शन कैलकुलेट किया. सबसे पहले हमने ग्रिड पॉइंट्स बनाए. ग्रिड पॉइंट्स बनाने का काम इंटीरियर ग्रिड पॉइंट्स नाम का एक फंक्शन कर रहा है जो हमने बनाया हुआ है. ये है इंटीरियर ग्रिड पॉइंट्स. ये क्या करता है, ग्रिड की स्पेसिफिकेशन लेता है, डोमेन की स्पेसिफिकेशन लेता है एंड देन इट कैलकुलेट्स द एब्सिसेस एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ग्रिड पॉइंट एंड रिटर्न्स देम एज अ लिस्ट. All right, so x is a list, y is a list. X is a list of ordinates, y is a list of x is a list of abscissas, y is a list of ordinates. ये जो cron का फंक्शन है, cron Kronecker के लिए स्टैंड करता है. cron का फंक्शन क्या काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 आपने एक ही दफा कैलकुलेट कराया, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन दफा आपने टाइल किया. ये टाइलिंग का जो काम है ये cron का फंक्शन कर रहा है. So I explained what is the Kronecker tensor product to you, and I just wish to have a recollection. Kronecker product दो matrices के बीच में क्या होता है? So you have a fair idea, ठीक है, किस चीज की बात हो रही है. Now we go to main again. और हम एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि UH जो है ये इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विच सिस्टम 1 का मतलब है कि फाइनेस्ट लेवल. फाइनेस्ट लेवल जो पहला लेवल है, फाइनेस्ट लेवल के ऊपर जो मैट्रिक्स है उसको इन्वर्ट करें और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दें. इसके लिए हम बैकस्लैश ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. और भी कुछ कर सकते थे. एक और तरीका ये था कि हम sys1.a को inv फंक्शन के अंदर रैप कर देते और फिर जो मैट्रिक्स बनती उसको एस्टेरिस्क लगा के मल्टीप्लाई कर देते with RHS. Instead, what we've chosen to do is use MATLAB's specific fast inversion algorithms and just say UH is this exactly inverted and multiplied with the right hand side. फिर ये हमें discretization error बताएगा. Discrete level 2 norm. UH minus analytic function now sampled at the grid point. जो कॉन्टिन्यूम सोल्यूशन हमने प्रिस्क्राइब किया है उसकी ट्रू वैल्यूज के साथ जो भी हमारे पास उसकी ट्रू वैल्यूज हैं हमें अपनी अप्रोक्सीमेशन को टेस्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज द डिस्क्रिटाइजेशन एरर एंड देन वी प्लॉट UH एंड वी प्लॉट एनालिटिक. हमने इन दोनों को प्लॉट करके साथ साथ देखना है. और इन अ फनी वे ऑफ सेइंग आई डिड एक्सप्लेन अर्लियर दैट इफ वी आर approximating something of which we have a clear idea, then we know what to expect. Right. So visually same होना चाहिए. ये हमारा सबसे पहला टेस्ट है. हमारा दूसरा टेस्ट क्या है कि डिस्क्रिटाइजेशन एरर, चूंकि हमारी स्कीम ऑर्डर x स्क्वायर है तो डिस्क्रिटाइजेशन एरर का रेशो 4 है या नहीं. ठीक है, ये ऑर्डर x स्क्वायर है या नहीं. राइट. Okay, so we will now just run this and run it not for grid size 8 but for a reasonable grid size 128. All right, now I am just going to run this. और ये काम अभी क्या करेगा, अभी मैंने इसको कीबोर्ड में जहां पे भी यूज करता हूँ ना वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि हॉल्ट हो जाए एग्जीक्यूशन मेरे प्रोग्राम की और कीबोर्ड पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए until I say
that I wish to go out and continue execution of the program. तो यहाँ पे स्टॉप कर देगा इस प्रोग्राम को, और करेगा क्या, यहाँ पे हमें देखने वाली चीजें क्या है, देखने वाली चीज विजुअली दो अदर प्लॉट्स हैं कि जो हमने UH पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्वर्ट करके फंक्शन रिट्रीव किया एज एन अप्रोक्सीमेशन, वो कैसा लग रहा है देखने में, और एनालिटिक फंक्शन जो कि असल में था हमारे पास कॉन्टिन्यूम फंक्शन जो हमने प्रिस्क्राइब किया था, वो कैसा लग रहा है देखने में. सो नाउ वी रन इट, वी जस्ट से मेन एंड वी हिट एंटर. It should create two graphs for us. Okay, so this is the test function. ये वो u है uxy जो हमने प्रिस्क्राइब किया था. It is a sinusoidal, two-dimensional sinusoidal as you can see. इसके exactly पीछे trying to move this out. So इसके exactly पीछे ये दूसरा है जो कि exact numerical solution है, and I am sure you can see that it looks pretty much the same. Does it? Okay, so visually at least ये बिल्कुल clear है कि जो ये चीज है जो हमने कैलकुलेट की है लग रहा है कि बिल्कुल सेम है. Alright, so I just cancel the graphs. कीबोर्ड के ऊपर जब कंट्रोल आके रुकता है तो यहाँ पे K लिखा हुआ नजर आने लगता है, and you can now check out the variables inside. ठीक है. ओके, अभी तक इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिटाइजेशन राइट हैंड साइड फॉर्मेशन के बारे में? yes. इस वक्त वहाँ पर तो ओरिजिनल फंक्शन बोला था कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वो? बाउंड्री कंट्रीब्यूशन के अंदर, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. बाउंड्री कंट्रीब्यूशन में हम एनालिटिक कॉल कर रहे हैं व्हिच विल गिव अस द बाउंड्रीज. एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, कीबोर्ड वाली जो मैंने बात बताई वो ये है कि जब आप फंक्शन एम फाइल रन करते हैं तो वो जितने भी इंटरिम वेरिएबल्स क्रिएट करता है वो सारे के सारे मैटलैब का गार्बेज कलेक्टर रिकलेक्ट कर लेता है जब एंड हो जाता है फंक्शन, एंड आई वुड अदरवाइज नॉट बी एबल टू लुक इनटू इट. गेटिंग द पॉइंट? कीबोर्ड से एग्जीक्यूशन मिडवे हॉल्ट हो जाती है, कंट्रोल कीबोर्ड पे आ जाता है, और गो के मैं फंक्शन के अंदर हूं, आई कैन स्टिल लुक इनटू द फंक्शन, डिफरेंट वेरिएबल्स. अगर मैं किसी वेरिएबल का स्पाई डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ या किसी वेरिएबल के वैल्यूज डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, एको कराना चाह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, देन आई कैन लुक इनटू इट. ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब हम इसको जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं through some methods, and the first method is not multigrid or two-grid method. We just wish to see how Jacobi works on it. आपके पास एक A आ गया है, एक राइट हैंड साइड आ गया है, हमें कुछ नहीं पता, हम अभी बिल्कुल नाइव है, हमें नहीं मालूम कि मल्टीग्रिड या टू ग्रिड या कोई सा भी ग्रिड कैसे काम करता है. हमें ये पता है कि हमें कभी बताया गया था कि देयर इज सम जैकोबी मेथड. उस जैकोबी मेथड के थ्रू हम प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से, ब्रूट फोर्स का यहाँ पे मतलब क्या है, एसिम्प्टोटिकली बहुत देर तक हजारों इटरेशंस देके, मे बी लाखों इटरेशंस देके कन्वर्ज कराना चाह रहे हैं. ओके, सो इसमें मेरे पास एक प्रोग्राम है mg सॉल्वर जो करता क्या है, ये राइट हैंड साइड करंट सोल्यूशन जहां पे खड़ा हुआ है, टॉलरेंस वैल्यू, मैक्सिमम इटरेशंस एंड फाइन एंड कोर्स इंडिसेस, ये चीजें भेजता है जो कि मल्टी ग्रिड के इस्तेमाल की चीज है, और उसके बाद मल्टी ग्रिड को कॉल करता है. सो दिस इज mg सॉल्वर. इसने ये सारी चीजें जो हैं वो ली और उसके बाद मल्टीग्रिड सॉल्वर को कॉल किया. अगर कॉल किया, यहाँ पे मैंने फिलहाल बंद कर दिया है, मल्टीग्रिड सॉल्वर अभी नहीं कॉल हो रहा. अभी क्या चीज कॉल हो रही है, एक सिंपल जैकोबी मेथड कॉल हो रहा है जो कि फाइनेस्ट लेवल इंडिकेट करेगा कि फाइनेस्ट लेवल ये है, सिस वेरिएबल या सिस्टम वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है. बिल्ड सिस ने क्या किया था, तमाम के तमाम लेवल्स के ऊपर
जितनी भी मेट्रिसेस की जरूरत थी वो मेट्रिसेस क्रिएट कर दी थी इन अ ग्लोबल वेरिएबल. नाउ सिंस इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, इट्स एक्सेसिबल बाय ऑल मेंबर फंक्शंस दैट डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज ग्लोबल, राइट. सो इसने भी इसको सिस को ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है. आप चाहें तो सिस को चेक कर सकते हैं कि सिस क्या है. 1x7 स्ट्रक्चर एरे विद फील्ड्स. ग्रिड, हर ग्रिड लेवल पे आपको बताया जा रहा है कि ग्रिड लेवल क्या है. फॉर एग्जांपल sys1 डॉट ग्रिड अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा 128 की है. sys2 डॉट ग्रिड चेक करें 64 की है. sys3 डॉट ग्रिड 32 की, एंड सो ऑन देयर 7. यस, ओके. आर क्या है? एवरेजिंग मैट्रिक्स है या रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स है. अब फाइनेस्ट लेवल के ऊपर हमें फाइनेस्ट लेवल से इंटरपोलेट करके ऊपर तो जाना नहीं है. तो sys1 डॉट पी क्या होगी? इंटरपोलेशन या प्रोलोंगेशन मैट्रिक्स क्या होगी? एम्प्टी मैट्रिक्स होगी. शुड बी एन एम्प्टी मैट्रिक्स. ठीक. अलबत्ता अगर मैं साइज चेक करूं sys1 डॉट आर का तो क्या होना चाहिए? ये रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स है. रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स किस शक्ल की होती है? इस शक्ल की होती है. इंटरपोलेशन मैट्रिक्स इस शक्ल की होती है. ठीक है. सो रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स इज 3969 वेरिएबल्स, जितनी रोज और कितने कॉलम्स? 16129. क्यों? हमारा फाइनेस्ट लेवल है 128, तो इंटीरियर पॉइंट्स टोटल कितने हुए? 127 स्क्वायर. तो 127 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 16129 आता है. और जब हम 64 सेल्स की अगली ग्रिड है उससे कोर्सर सॉरी 63 स्क्वायर 3969 आता है. सो दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स और एवरेजिंग मैट्रिक्स ऑफ द करेक्ट साइज. एनी क्वेश्चन सो फार? ओके. ऑलराइट, सो जैकोबी मेथड अब हम कॉल करने जा रहे हैं और हम कुछ इंफॉर्मेशन हर दफा प्रिंट कराएंगे. वो इंफॉर्मेशन ये है कि रेजिडुअल नॉर्म जो है वो क्या चल रहा है, और टोटल टाइम इस इटरेशन ने कितना लिया, और रेशो जो है, रेशो इज द करंट रेजिडुअल नॉर्म डिवाइडेड बाय द लास्ट रेजिडुअल नॉर्म. तो अगर रेजिडुअल इज अ क्वांटिटी वी आर ऑल अक्वेंटेड विद, राइट. रेजिडुअल अगर एक लेवल के ऊपर कैलकुलेट हुआ और प्रोसीड्स सही चल रही हैं इटरेटिव मेथड की, तो थोड़ा सा डिके आना चाहिए रेजिडुअल में. तो अगर आप अगले यानी पिछले वाले को डिवाइड कराएंगे या अगले वाले को डिवाइड कराएंगे पिछले वाले से, द नंबर हैज टू बी मच लेस देन 1. ये बात फॉलो कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि आपका एरर जो है वो पहली इटरेशन पे 1 था और दूसरी इटरेशन पे एरर जो है वो 0.5 हो गया. तो अगर आप 0.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा, विच इज अ नंबर स्मॉलर देन 1. सो रेशो रेजिडुअल्स का कन्वर्जिंग इटरेशन में 1 को एक्सीड नहीं कर सकता. अगर 1 को एक्सीड करे आपका मेथड डाइवर्ज कर रहा है. अगर 1 हो जाए तो आपका मेथड स्टॉल कर रहा है, इट्स स्टॉलिंग. ओके, सो हम अभी जैकोबी की एक ग्लिम्स देख रहे हैं, और एज यू नो वी आर नॉट वेरी पेशेंट एज अ स्पीशीज. So what we would do, so it's running, Jacobi is running at full speed. You can also already see that the residual ratio, successive residual का 0.9 पे स्टिक किया हुआ है इसने. ये देखते जाएं नंबर आहिस्ता आहिस्ता रेजिडुअल के छोटे हो रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत सुस्त है. 2500 इटरेशंस तक ये पहुंच चुका है ऑलरेडी. और आई डोंट नो कि क्यों इस तरह दिखा रहा है. नाउ मे बी थोड़ा सा आपको बेहतर नजर आ रहा होगा, राइट. जा सकती हैं, हमने उसे वहां रुकने को कहा है कि अगर नहीं जा रहा बेल आउट, विच इज क्वाइट ट्रायल ऑफ पेशेंस एनीवन. इट हैज नाउ एक्सीडेड 10,000 और रेजिडुअल के सिर्फ पहले 2 जीरोस जो हैं वो अभी अचीव कर सके हैं हम पॉइंट के बाद. अब 3 हो गए और ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि मेथड नियरली स्टॉल कर रहा है. नियरली स्टॉल करने का मतलब क्या है कि अब वो एक्स एक्सेस के साथ साथ चलता जा रहा है और बहुत ही
माइन्यूटली एक्स एक्सिस के करीब हो रहा है, बहुत ही माइन्यूटली। ओके, सो इसने ये कहा कि टॉलरेंस हमने इसे दी थी, वो टॉलरेंस की वैल्यू थी 10 टू द पावर 6 -6। तो जो 10 टू द पावर -6 है, जब हो गई रेजिडुअल इतना छोटा हो गया तो इट बेल्ड आउट। व्हेन इट बेल्ड आउट, इसने इटरेटिव सोल्यूशन भी हमें प्लॉट करके बता दिया। अब ये वो दोनों तस्वीरें नहीं हैं जो पहले बताई गई थी। वो जो पहली तस्वीर थी वो UXY सैंपल किया था अपने ग्रिड के ऊपर। जो दूसरी तस्वीर थी वो उसका डिस्क्रिटाइज PD का एग्जैक्टली इन्वर्टेड सोल्यूशन था, और अब ये वाला जो है ये इटरेटिवली इन्वर्टेड सोल्यूशन है। सो देखने में यहाँ भी यही नजर आ रहा है, और देखें शुरू में किस तरह से रेजिडुअल नीचे आया, और उसके बाद रेजिडुअल नीचे आने की रफ्तार जो है वो काफी स्लो हो गई। और ये याद रखिए कि y एक्सिस इस वक्त लॉग स्केल पे है, मेक नो मिस्टेक्स। y एक्सिस नॉर्मल स्केल पे नहीं है बल्कि लॉग स्केल पे। अगर नॉर्मल स्केल पे होता तो ये आपको बिल्कुल ही ऐसे नजर आ रहा होता, फ्लैट x एक्सिस के साथ चलता हुआ। How many iterations did it take? 15746. ओके, अब मैं इसमें इसी मैजिक में आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज ये है। So debugger can quit. Now what I want to show you is I will just go and change the grid size and take a very miserable grid size. I change it back to 88. क्या अभी से 15,000 इटरेशंस लगेंगी जैकोबी को इसको कन्वर्ज कराने में अप टू टॉलरेंस 10 टू द पावर -6? What do you suspect? Main. My system is sleeping. No, this is not थका हुआ, बल्कि this has taken, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है काम, और काम जो है वो इसलिए नहीं शुरू हुआ, there was some other problem going on. Okay, so I don't know how to get rid of that. Anyways, so let's just do this. अभी यहाँ पे रुका हुआ है, and I wish to go here and say please continue with solving the problem. अभी problem solution शुरू नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है 130 iterations पे, residual norm decayed up to 10 to the power -6. Compare 15,000 over 15,000 iterations with 130 iterations. बहुत तेजी के साथ, बहुत क्विकली इसने इसको रिड्यूस कर दिया। क्यों? इसलिए कि कोर्स ग्रिड्स के ऊपर कन्वर्जेंस रेट स्टेशनरी इटरेटिव मेथड्स का इनहैंस हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ऑल राइट, सो now what I want to show you is go to MG solver and change Jacobi with Gauss idle, save it, and go to main, and again have that same 128 and see what kind of job it does. और अब हम फिलहाल ये जो प्लॉटिंग थी यहाँ पे, इनिशियल प्लॉटिंग बियॉन्ड डिस्क्रिटाइजेशन एरर, ये अभी हम फिलहाल कमेंट आउट कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू सी द पिक्चर्स, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट दैट द डिस्क्रिटाइजेशन इज करेक्ट, वी जस्ट वांट टू सी द इन्वर्जन। So we do a main again, starts iterating. What's your guess? 15,000 something against what now? 8,000. Yeah, 8,000 to me seems more plausible. Something, it's about twice as fast. I believe so.
Interesting game, right? Yeah. If you have a complete command of that game, then only it's very interesting. Right, so you need to know and understand how to tweak different components in order to get what you want. Okay, so kitni iterations aayi? How many were there? Yeah, you did. Right, 8,189. So yeah, so Gauss idle is twice as fast. All right, now what we would do, we would run a two-grid method with Jacobi used as a smoother. Okay, so I will now explain to you how to tweak those components of the program so that you have a command over what smoother you're using, what relaxation parameter value you're using, how many smoothings you are using before the two-grid correction, and how many you're using after the two-grid correction. And we are just going to use two grids. हम सिर्फ दो grids use करेंगे. हम और भी कर सकते हैं use. I have not yet explained to you how to replace those, so I would just use a two-grid method here. Now we would go here and check out a few things. This is when would we say that the problem has been amply solved? When the relative residual goes up to or below 10 to the power -6, 1 part in million. So जब 10 to the power -6 हो जाए या उससे छोटा हो जाएगा relative residual, we would stop, we would break the loop which is iterating. Now what I want to ask you is, what is the relative residual? Relative residual हम कहते किससे हैं? previous and new values divide it. First वाले से. First one. ठीक है, so there is a first residual जो आपने iteration start करने से पहले calculate किया होता है, और फिर एक running residual होता है. हर iteration के बाद आप एक residual calculate कर सकते हैं. तो अगर current residual को हम first residual से divide कर दें, that is known as relative residual. That is a measurable quantity within iterations, and we use that to stop our method. ये स्टॉपिंग हमें कहाँ पे नजर आ रही है? इसी mg सॉल्वर के लूप में नजर आ रही है, जहां हम इसे कभी जैकोबी कभी गाउस आइडल कर रहे हैं. ये क्या काम कर रहा है? ये रिलेटिव रेजिडुअल को कैलकुलेट कर रहा है कि जो करंट रेजिडुअल है उसको डिवाइड कराएं पहले रेजिडुअल से. अगर वो चीज टॉलरेंस के बराबर या उससे छोटी हो गई है, देन ब्रेक द लूप. तो ये फॉर लूप टूट जाएगा इससे. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, नाउ वी गो बैक टू द मेन फंक्शन. हमने इंडेक्स फाइन और इंडेक्स कोर्स अगेन इज समथिंग टोटली इररिलेवेंट फॉर नाउ. लेट्स नॉट डिस्कस इट. नाउ व्हाट इज रेलेवेंट इज this smoother thing. So I have made smoother into a structure. MATLAB allows you to use structures. You're acquainted with structures, right? The CS guys. So हमने structure के लिए क्या करते हैं? Structure का एक common नाम है smoother. उसके different fields हैं जो कि dot से reference होता है. So smoother dot id is equal to 2 means that we are using Gauss Seidel. यहाँ मैंने explain कर दिया, we are using Gauss Seidel as a smoother. How does it know? जहां मैं smooth कॉल करूंगा, वो smooth का जो फंक्शन है वो Gauss Seidel को कॉल कर लेगा with as many iterations as have been asked in pre or post. Relaxation parameter 0.8 irrelevant है for now. क्यों? इसलिए कि हमने smoother id में Gauss Seidel यूज किया है. Gauss Seidel does not use an over relaxation parameter. Jacobi does, SOR does, but Gauss Seidel does not. तो मैं इसको 1 रखूं या 0.8 कर दूं, उससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इसे यूज ही नहीं करेगा. कितनी दफा मैं प्री स्मूथिंग चला रहा हूं Gauss Seidel और कितनी दफा पोस्ट स्मूथिंग? जस्ट वंस. ठीक है, ओके.
रिस्ट्रिक्शन फुल वेटिंग जिसको कहा गया है, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था 1D के अंदर, 2D में भी डायग्रामेटिकली बताया था कि किस तरह एवरेजिंग होगी। तो द रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स कौन सी वाली बननी है, किस किस्म की, फुल वेटिंग वाली बननी है। हाफ वेटिंग की भी रिस्ट्रिक्शन बन सकती है, आप बना सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं मौजूद, कोड इट योरसेल्फ इनसाइड build sys, कोई इशू नहीं है। So in open code, you can add components to it, you can make it as funky as you like. Prolongation is equal to 2 for bilinear interpolation. अभी फिलहाल मैंने इसमें और कोई ऑप्शन नहीं डाला है. A clear option is which stands for bicubic interpolation. I would like to request someone of you to add that option to it. Okay, bicubic for 3. तो 3 में आप bicubic डाल सकते हैं inside build sys after finding out कि bicubic interpolation होती क्या है. CG is equal to 1. 1 means that you are rediscretizing the problem on the coarse grid. What does 1 mean? That you are rediscretizing the problem, the PDE problem on the fine grid. उससे हमारे पास कोर्सर लेवल के ऊपर मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है. कोर्सर लेवल के ऊपर मैट्रिक्स फॉर्म करने का एक और भी तरीका है जो कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से वारंटेड है. वो तरीका क्या हो सकता है? उसको RAP या गैलेरकिन मेथड कहते हैं. गैलेरकिन मेथड क्या करता है? फाइन ग्रिड की रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स, फाइन ग्रिड की इटरेशन यानी फाइन ग्रिड की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और उसके बाद कोर्स से फाइन आने वाली इंटरपोलेशन मैट्रिक्स, इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो गैलेरकिन कोर्स ग्रिड ऑपरेटर बन जाता है. गैलेरकिन कोर्स ग्रिड ऑपरेटर की कुछ खुसूसियात हैं, अच्छी और कुछ खराबियां. खुसूसियात ये हैं कि इट वेरी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कोर्स ग्रिड प्रॉब्लम, और खराबी ये है कि अगर आप रीडिस्क्रिटाइज करें पीडी को कोर्स ग्रिड पे तो आपकी जो स्पार्सिटी है वो वही होती है, अच्छी स्पार्सिटी होती है, बहुत से जीरोस होते हैं. स्मॉलर मैट्रिक्स मींस a matrix with lesser non-zeros means lesser number of arithmetic steps to carry out. उसके against जो गैलेरकिन है, it is a more dense matrix. It's not stored in a dense format, but it has more non-zeros compared to the rediscretized operation. So you have CG is equal to 1 set here. Number of levels empty रखने से ये कोड क्या करेगा? तमाम के तमाम possible levels ले लेगा. 128, 64, 32, 16, 8, 4 and 2. We don't want it to do that. So we would just write 2 here and put a semicolon there. Plot cycle, क्या multigrid cycle visually plot करें? इस वक्त मैंने इसे ऑफ किया हुआ है, ठीक है. It's just a 2 grid method. 2 grid method सिर्फ V cycle बनाता है. 2 grid method में और कोई cycle type possible नहीं है. All right, now this function build sys does what exactly? Let's go to build sys and check out. It needs to know कि restriction कौन सी वाली है, full weighting है या half weighting है, coarse grid operator किस type का है, गैलेरकिन है, जैसे GCG कहते हैं गैलेरकिन coarse grid operator, या discretization coarse grid operator है जैसे DCG कहते हैं. prolongation कौन से टाइप की है? आप बहस कर सकते हैं कि प्रोलोंगेशन आपने ना इसको जो इनपुट दिया है क्योंकि आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा हुआ है, वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हार्ड कोड कर देते बिल्ड सिस के अंदर, व्हिच वी कैन डू, बट दैट वुड आल्सो मीन डिफीटिंग द पर्पस फॉर व्हिच दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज बिल्ड. दिस प्रोजेक्ट इज बिल्ड so that you can demonstrate each component, change each component and demonstrate the difference in efficiency that you see. Grid and domain finest level के ऊपर आपने इसे प्रोवाइड कर दिया. ओके, इसने डिफरेंट वेरिएबल्स मेमोरी में सेट किए. n I is equal to 1 से लेकर नंबर ऑफ लेवल्स -1 जितने भी हैं. अगर 1 दिया आपने हाफ वेटिंग एवरेजिंग बनाई इसमें, अगर आपने 2 दिया है फुल वेटिंग एवरेजिंग बनाई. सिमिलरली प्रोलोंगेशन ऑपरेटर सेट किया. प्रोलोंगेशन ऑपरेटर सेट करने के बाद आपने कोर्स ग्रिड ऑपरेटर सेट किया. अगर DCG है तो आपने कहा कि इसको दोबारा डिस्क्रिटाइज कर दें स्मॉलर ग्रिड साइज पे, और अगर GCG है
तो RAP यूज करके मैट्रिक्स सेट कर लें, एंड देन दिस फंक्शन रिटर्न्स. ओके, सो नाउ आपने कहा कि CPU time is a function that returns a value that has elapsed since some historical time in milliseconds. For example, January 1, 1980 से अभी तक कितने मिलीसेकंड्स गुजरे हैं वो CPU टाइम में आ जाएगा. उसके बाद जैसे ही आपने कोई प्रोसेस रन किया, आप CPU टाइम फिर से नाप लें और दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको बता देगा कि आपके प्रोसेस ने कितना CPU टाइम एंगेज किया है. ठीक है, सो टाइमिंग का ये एक तरीका है जिसको लिखा गया है इस तरह. mg टाइम में फिलहाल CPU टाइम t is equal to CPU टाइम, जो करंट CPU टाइम है, एंड देन mg टाइम इज CPU टाइम माइनस t, और इसके बीच में ये ऑपरेशन चल रहा है mg सॉल्वर का. ओके, नाउ वी गो टू mg सॉल्वर. वी enable this, we disable plain Gauss-Seidel. Grid size वही है 128 and what's your guess now? 8000 with Gauss-Seidel. How many with this two grid cycle? Gauss-Seidel के साथ हमने 8000 समथिंग देखी थी, जैकोबी के साथ 15,500 के करीब थी. मैं पूछ रहा हूँ कि टू ग्रिड साइकिल में आप कितनी एक्सपेक्ट करेंगे रफली? That's it. Yeah. अब आप ये देखिए कि हर उस पे, हर इटरेशन पे एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिके जा रहा है. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल विद दोज मेथड्स दैट जस्ट वर्क ऑन वन ग्रिड. So this is very quick. mg time, this 2.5 into 10 to the power minus 1, which is 0.25 seconds. Again, Jacobi, you've already seen Jacobi, you've already seen Gauss-Seidel. Gauss-Seidel is probably the best stationary method out there, unless of course you have a problem in which you know what over-relaxation parameter to use, which would then become significantly faster, but not as fast as this. Okay, now coming back to the topic, हमने क्या किया है इसमें exactly? So इसको देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा mg लेवल है, इसके अंदर हमने enable किया है mg को. So naturally the next point of curiosity is to check out what mg is doing. Open mg. Okay, इसमें just for your sake and to make matters simple, I have heavily documented this. I mean commented this out. ये जो ब्लॉक है इसमें जो लाइन नंबर 9 है, सिर्फ लाइन नंबर 9, ये सारी जो बाकी लाइंस है ना, ये लाइंस स्मूथिंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है. ये लाइंस क्या काम कर रही हैं? लेवल स्टोर करा रही हैं ताकि आप साइकिल टाइप को प्लॉट कर सकें. सो आपने स्मूथ किया एक दफा, कमेंट डाल दिया प्री स्मूथ. एसपी क्या है? सिस्टम पॉइंटर है कि सिस्टम में आप किस लेवल पे मौजूद हैं. अभी आपके पास दो ही ग्रेड्स हैं, या आप लेवल 1 पर होंगे या आप लेवल 2 पर होंगे. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप लेवल 2 पर होंगे तो आप इधर स्मूथ में SP2 पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो पहले ही इन्वर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम. सो इमेजिन कीजिए कि हम SP1 के साथ mg के अंदर एंटर हुए. SP1 का क्या मतलब है? 128 स्क्वायर ग्रिड. इसने एक दफा स्मूथिंग मेथड चलाया, जो भी स्मूथिंग मेथड हमने इससे कहा है. कौन सा कहा है? पीछे क्या सेट किया था? Gauss-Seidel. स्मूथ को खोल लीजिए. This is what the function is doing. जितने अपने ऑप्शन रखे हैं उतने स्विच केसेस ने डाल दिए हैं इसमें, और प्री पोस्ट डाल दिए हैं. ठीक है, प्री पोस्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी. अगर प्री पोस्ट की वैल्यू 1 है तो वो प्री स्मूथिंग है, और अगर 2 है तो वो पोस्ट स्मूथिंग है. क्यों हमने अलग अलग क्यों रखी है जबकि प्रोसीजर एक ही है? क्योंकि तादाद प्री स्मूथिंग की और पोस्ट स्मूथिंग की हम डिफरेंट रखने का ऑप्शन रखना चाहते हैं. सो दिस गोज हियर.
लेक्सिकोग्राफिक गाउसाइडल, और प्री स्मूथिंग यहाँ पे जाके इसने प्री स्मूथिंग चला दी। गाउसाइडल का मेथड वही है, सिंपल मेथड जो पहले हमने देखा था। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। ये कहता है कि L+D जो है वो ये मैट्रिक्स है, और इसको L+D को आपको इन्वर्ट करना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद दिस, दैट्स ऑल। 3-4 लाइन गाउसाइडल की, यही वो गाउसाइडल है, यही वो मेथड है जिसने 8100 समथिंग आपको इटरेशन दी, ठीक है। Okay, so now you're using it, employing it just as a smoother inside MG method. अब course grid correction में I've included neatly all the steps that are needed. So step 1 is computing the fine residual. यहाँ से हमारे पास क्या चीज बन के आई है? स्मूथ ने किसको कॉल किया? गाउसाइडल ने। गाउसाइडल ने रिजल्ट किसके पास भेजा? स्मूथ के पास भेजा। स्मूथ ने रिजल्ट किसके पास भेजा? MG के पास भेज दिया वापस, जहां से कॉलिंग इनिशिएट हुई थी। अब UH is now an improved solution after execution of line number 9. Alright, so आपने कहा राइट हैंड साइड में से जो भी करंट सिस्टम है जिस लेवल पे अभी 128 लेवल पे है, डॉट ए उसकी जो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई विद द करंट अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेट द रेसिड्यूअल। Now let's move to step number 2, sub-step number 2, restricting the fine residual to the cost grid. आपने कहा कि इस सिस्टम की जो रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स है उसको इस फाइन रेसिड्यूअल से मल्टीप्लाई करा दें, जो रिजल्ट हो उसको R(H) से रिप्रेजेंट करें, which is the cost residual. Sub-step C, incrementing the system pointer to point at the cursor level. जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोर्सर लेवल पे, नाउ वी आर गोइंग टू ऑटोमेटिकली थिंक दैट द ग्रिड साइज हैज बीन रिड्यूस्ड। तो हमने सबसे पहले सिस्टम पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया। हमने कहा कि फाइनेस्ट लेवल 1 है 128 वाली, लेवल 2 64 वाली है, लेवल 3 32 वाली, एंड सो ऑन। इस वक्त हम सिर्फ 2 यूज कर रहे हैं, तो हमने सिस्टम पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया। अब EXSOL हमारे पास so EXSOL, where have we defined this? EXSOL is length of the system variable. अगर हमने सिर्फ 2 ही लेवल्स यूज किए थे तो 128 की मैट्रिसेस हमने बनाई होंगी, 64 की बनाई होंगी। तो जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम सिस है, उसकी लेंथ क्या है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन बता रहा है। हम आखिरी लेवल के ऊपर क्या करते हैं? प्रॉब्लम को एग्जैक्टली इन्वर्ट करते हैं। So this is what we are doing. We exactly invert this. If this is SP is less than XOL, तो इसका मतलब ये है कि अभी एग्जैक्ट सोल्यूशन का स्टेज नहीं पहुंचा है। अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन का स्टेज नहीं पहुंचा है तो आप रेसिडुअल इक्वेशन को इटरेटिवली सॉल्व करें। कैसे? दैट विल कम लेटर। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? दिस विल कम लेटर। अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन के लेवल तक पहुंच गए हैं, जो कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में पहुंच चुके हैं, तो EH is an exact inversion of the required matrix, of the matrix, of the correct matrix into the coarse residual. तो EH हमारे पास coarse level के ऊपर बन गया है। अब जो हमारे पास सब स्टेप E है coarse grid correction की, वो क्या करेगी? ये जो coarse grid के ऊपर एरर हमने तामीर किया है, बनाया है या ऑब्टेन किया है, इसको इंटरपोलेट करके वापस लंबा कर रही है। So, इसने ये कहा सबसे पहले कि इस लेवल की जो प्रोलोंगेशन मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें EH से। उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया EH से तो एरर लंबा हो गया वापस। एरर लंबा होने का मतलब है हमने अपनी ग्रिड का जो पॉइंटर था वो 64 वाले से हटा के वापस 128 पे शिफ्ट कर दिया है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वी डिक्रीमेंट the system pointer to point at the final level now. फिर हमने कहा UH नया क्या है? is UH plus the correction coming from the coarse grid. तो ये मेन वाइटल पार्ट है जिसे कहते हैं adding the correction from the coarser grid to the last fine iterate, update the solution. ये solution कहाँ से आया था? ये वाला प्री स्मूथिंग से। ये जो प्री स्मूथिंग है यहाँ पे, ये इसने क्रिएट किया था UH में जब हमने ऑब्टेन करके एरर
की अप्रोक्सीमेशन ऐड कर दी तो हमारा नया यूएच बन गया। ओके, लास्ट क्लास में हमने एक चीज ये डिस्कस की थी कि जब हम इंटरपोलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं तो इंटरपोलेशन ऑपरेटर चूंकि वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, तो इंटरपोलेशन ऑपरेटर सम हाई फ्रीक्वेंसीज को, जिसको प्री स्मूथिंग के स्टेज पे डैम्प आउट किया जा चुका था, री एक्साइट कर देता है। सम फ्रीक्वेंसीज गेट एक्साइटेड, सम हाई फ्रीक्वेंसीज गेट री एक्साइटेड as a result of the prolongation operator. To redamp them, what do? We do a post smoothing step, and that's it. This completes one two grid iteration. So now 128 square grid पे प्री स्मूथ किया और रेजिडुअल कैलकुलेट किया, नीचे लेकर आए 64 स्क्वायर ग्रिड पे, एरर इक्वेशन फॉर्म की, एरर इक्वेशन एग्जैक्टली इन्वर्ट की, एरर कोर्स ग्रिड पे बन गया, इसको इंटरपोलेट करके वापस लेकर आए फाइन ग्रिड पे और एक दफा पोस्ट स्मूथ कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन साइकिल की कुछ इस तरह की है। वी हैव वी स्मूथ, ये जो फिल्ड इन ये है, ये स्मूथिंग है, रिस्ट्रिक्ट किया, नीचे लाए, इस लेवल के ऊपर ये जो हॉलो सर्किल है ये बता रहा है कि हमने एग्जैक्टली इन्वर्ट किया है। ये वाला जो स्लैश है ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश इज रेस्ट्रिक्शन, फॉरवर्ड स्लैश इज इंटरपोलेशन। यहाँ पर आए और हमने पोस्ट स्मूथिंग कर दी। ये हमारी एक टू ग्रिड साइकिल है और आपने यही देखा है अभी अभी कि जैकोबी में बहुत सारी इटरेशंस लगती हैं, गाउस साइकिल में बहुत सारी लगती हैं, मगर टू ग्रिड इज वेरी क्विक। अब अगर हमें प्रॉब्लम एक से पूरा नहीं हुआ है सॉल्व तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो जब रिपीट करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास एक स्मूथिंग है, नीचे आया, यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ऊपर गया, यहाँ पे एक पोस्ट स्मूथिंग है, उसके बाद हमारे पास एक प्री स्मूथिंग है, नीचे आया, एग्जैक्ट सॉल्व किया और यहाँ पे इंटरपोलेट करके आया, यहाँ पोस्ट स्मूथिंग है। सो दिस इज आवर टू ग्रिड साइकिल, 128 स्क्वायर, 64 स्क्वायर। अच्छा, अब हमने एक चीज जनरली ये देखी थी कि प्रॉब्लम जब आप डिस्क्रिटाइज करते हैं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, कॉन्टिन्यूम सोल्यूशन तो आप नहीं रिट्रीव कर सकते डिस्क्रीट सोल्यूशन से। फिर हमने एक मजीद चीज ये देखी कि अगर हम डिस्क्रीट प्रॉब्लम को एग्जैक्टली इन्वर्ट करते हैं वर्सेस इटरेटिवली इन्वर्ट करते हैं, तो when iterations tend to infinity, only then under that theoretical limit we can say कि iterative solution is convergent method का वही है जो कि exact solution, exact numerical solution है, exact discrete solution है। So now I have a question. 64 square grid के ऊपर हम error equation को exactly invert कर रहे हैं। हम कुछ और भी कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास ऐसा कंप्यूटर होता जो 64 स्क्वायर ग्रिड को एग्जैक्टली इन्वर्ट ना कर रहा होता। तो ठीक है, आप लोगों का बहुत होमवर्क किया हुआ है। सबसे नाइफ तरीका क्या होता? ठीक है, हमने प्रॉब्लम साइज को तो रिड्यूस कर दिया। अब कोर्सर ग्रिड के ऊपर जो जैकोबी या गाउस-साइडल मेथड है उनका मार्जिनली इंप्रूव्ड कन्वर्जेंस रेट होगा। हमने अभी देखा था कि बहुत छोटी ग्रिड पे 130 इटरेशन में सॉल्व हो गया। तो हम बहुत सारे उसको जैकोबी या गाउस-साइडल के रेपिटेटिव इटरेशंस दे सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द कोर्स ग्रिड एरर इक्वेशन, और वी कैन से कि अब 64 वाला जो प्रॉब्लम है वी विल ट्रीट दिस एज अ फाइन ग्रिड प्रॉब्लम और उसको 32 वाले पे इन्वर्ट करने, तो उसे और नीचे लेके जा सकते हैं। उस लेवल पे प्री स्मूथ किया, 32 पे लेके गए, 32 पे से जो है एग्जैक्टली इन्वर्ट किया, उसको ऊपर लेकर आए और फिर उसको और ऊपर लेकर चले गए। तो इस तरह आपने 3 ग्रिड्स इन्वॉल्व करनी। देखें, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज एग्जैक्टली दिस। Are you pressed for time right now, all of you? Okay. All right. So I initially said yes when Munira asked if I can deliver class yesterday, but then something important that I couldn't get rid of turned up, and I had to go there. Now my request is to rearrange this any day in the coming week. The only restriction is do not do it from 4:30 to 6 p.m. in the evening on Thursday. Rest I can manage anytime. Online. Physical, online, anything.
वेडनेसडे क्लास के बाद Wednesday is 23rd March. Yeah, we can do that online. Hybrid कर देना. ये वाला वेडनेसडे ऑफ है ना, फ्राइडे को हाइब्रिड करना है। नहीं तो और अच्छा अगर आपकी होती है आप हाइब्रिड शाम में हाइब्रिड कर लो। हाँ वो करेंगे आप लोग शाम को हाइब्रिड करना ऑनलाइन। ठीक है, सही है। So we end it here, but the story doesn't end, right? Story is just midway. I still have a lot to demonstrate before you here. Guys, do not understand हमारा जो project ये आपने सारी चीजें define की हैं। Poisson theory. हम तब्दील करेंगे to incorporate different regions or different discretization types. I might say कि आपके जो वेरिएबल्स है ना वो यहाँ नहीं है जहाँ ये ब्लैक स्क्वायर्स लगे हुए हैं, बल्कि यहाँ पर हैं जहाँ पे ये ग्रीन सर्कल्स बने हुए हैं। दिस इज अ सेल सेंटर्ड ग्रिड। ठीक है, अब ये जो क्रॉसेस हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। अब अगर आपके पास टोटल 16 सेल्स थे तो आपके पास टोटल 16 वेरिएबल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि 16 सेल्स में 9 वेरिएबल्स हैं। इसको सेल सेंटर्ड स्कीम कहते हैं। हर चीज चेंज हो जाएगी, मैट्रिक्स की डिस्क्रिटाइजेशन चेंज हो जाएगी, प्रोलोंगेशन ऑपरेटर, रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन और उनको कोड करना चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड की डेफिनेशन और बाउंड्री को कोड करना चेंज हो जाएगा। सो स्केलेटन वही रहेगा। ठीक है, आपको एक बाउंड्री मेथड चाहिए, एक मेथड चाहिए जो मैट्रिक्स उगल दे, एक और मेथड चाहिए जो कि टू ग्रेड या मल्टी ग्रेड को एक सीक्वेंस के अंदर कॉल करे। सो स्केलेटन वही है, कंपोनेंट्स आपको ट्वीक करने पड़ेंगे। ये होगा आपका प्रोजेक्ट फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। तो हर किसी ग्रुप को आपको असाइन करेंगे या अपनी मर्जी से? आप मुझे ऐसा करें, ईमेल कर दीजिए ग्रुप मेंबर्स के नाम। कितने का ग्रुप? कितने लोग हैं आपके टोटल? नहीं 4 ज्यादा हो जाएगा तो बड़ा और अगर 4 के पता है 4 में मसला क्या होता है, आपका अच्छा तजुर्बा है प्रोजेक्ट्स में काम करने का नेटी से, मेरा अच्छा तजुर्बा नहीं है। मुझे ये लगता है कि जब बहुत ज्यादा ग्रुप मेंबर्स हो जाते हैं ना तो एक दूसरे पे रिलायंस बहुत बढ़ जाती है। हर एक समझ रहा होता है फला काम करेगा, और उनमें जो एक काम काजू शख्स और 3 निकम्मे होते हैं ना, वो एक ही के ऊपर सारा बोझ आता है। 3 is fine. 3 is fine. Send me the name of the group members. You wish to continue your older project? So that we needed. It was the same as this self-centered on Poisson equation one. Would you like to take that up? Or I'll think about it. Let me know. तो एक सब हो जाएगा, एक दो का बनेगा। All right, thank you all. Thank you, sir. Really?